document.getElement by ID. Now you just write dollar in this. So it's a way. It's a way you have to learn jQuery to understand what's happening. I'm just giving you an insight on the tools that you need to have to do better web development. It will happen progressively. In first year, second year, it's a lot of time, but it will happen progressively. If you know कि मुझे ये काम इस tool से करना है, then your life becomes easier, right? Ajax मेरे को लगता है 99% कभी फेसबुक पे देखा है when you scroll down पेज अपने आप और पॉपुलेट हो जाता है कंटेंट, so it happens because of Ajax. जब तुम उस पॉइंट पे पहुंचते हो तो your browser says to Facebook कि मेरे पास अब कंटेंट नहीं बचा है, मेरे को नया कंटेंट दो. तो एक इवेंट फायर होता है, वो फेसबुक के पास जाता है और जो लास्ट एलिमेंट था उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स लेके आता है. बहुत टेक्निकल हो जाएगा if I get into the details. लेकिन यू अंडरस्टैंड कि पेज पुल बैक नहीं हुआ, पूरी रिक्वेस्ट नहीं गई फेसबुक के पास, सिर्फ उस डेव के कंटेंट को चेंज करने का रिक्वेस्ट किया और नया कंटेंट आया. After that is any other terms that you might have heard and I have not covered. Any other term? XML and HTML. HTML is hypertext markup language. It is used to write markup for the browser. कोई भी वेबसाइट बनानी थी, मैंने कहा था step 1 is HTML. HTML लिखने is like giving bones to your website. अगर उसका कोई skeleton लिखना है तो you'll use HTML. Now XML is extendable markup language. XML was devised as a way to transfer data. Data transference के लिए XML device हुआ था. So there are tags. उसमें भी एक DOM tree बनती है, it's called DOM tree, XOM tree. उसमें भी same structure as HTML use होता है, but is only for data transference. तो tag के बीच में जो लिखा होता है ना, that becomes your data. If I can show you an example, I don't know. Don't refer to this site ever. बहुत गलतियाँ इसमें, but I'll use it because easily accessible है. So you see, right? एक tag है note नाम का, उसके अंदर to from heading और body है. So these are called XML tags. उनके बीच में जो data लिखा हुआ है ना, वो data है. Now if I was to transfer this data to this server, I'll build an XML और XML एक file हो जाती है. Now I can send the file to them. तो अगर मुझे database नहीं बनाना, उसका connection object नहीं बनाना, उसमें data लिखना नहीं और उसको read करने के लिए object pass नहीं लिखना, तो I'll just send XML कि ले यार तू XML पकड़, XML को पास कर, डेटा निकाल कुछ कर. So it was a method to move data across systems, right? So this is the difference. HTML would give structure to your body. XML is a way to transfer data. Any other questions on the topic that we have covered? DNS. Sorry. So DNS is domain naming system or domain naming server, as some people would say. तो जब मैंने कहा था ना कि we type www.facebook.com, so there's a service running on the internet. It's called DNS. उसके पास ब्राउजर तुम्हारा रिक्वेस्ट भेजता है कि यार मेरे को किसी ने ना facebook.com ढूंढने को कहा है, क्या करूँ? तो DNS कहता है ठीक है रुक जा, मैं देखता हूँ कि मेरे पास facebook.com के अगेंस्ट कौन सी IP पड़ी है. तो that is the system that DNS is. DNS के पास एक लिस्टिंग है जहाँ पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स लिखा हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग IPs लिखे हुए हैं. जैसे तुम 10 वेबसाइट्स यूज़ करते हो तो 10 IPs याद करनी पड़ती है, याद सोचो. तो व्हाट हैपेंस इज कि उसे एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म देते हैं और दैट इज व्हाट यू रिमेंबर. facebook.com, quora.com, twitter.com, these are all human readable formats. कंप्यूटर को नहीं पता होता कि यार facebook.com पे क्या है. इट नोज कि DNS के पास जाएगा facebook.com, IP आएगी, फिर IP जाएगी सर्वर के पास. Any other questions? Oracle is a evil company. Oracle की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. DB बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. नेसेसरी evil जैसे कि ज़रूरी है और evil भी है और बहुत सारा काम करते हैं वो लोग. बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है उनके पास और यूज़ होता है कॉर्पोरेट में बिकॉज इट हैज़ द बैकिंग ऑफ अ रियल ह्यूज कंपनी. तो अगर कॉर्पोरेट कंपनीज को गारंटी चाहिए कि यार ये चीज़ चलनी चाहिए, अदरवाइज माई बिजनेस गोज डाउन, so they will prefer closed source technologies like Microsoft, Oracle and things like that. Anything else you might have heard of? You covered the one second. If you have an IP address for site,
तो अगर हम सीधा डायरेक्ट वो डालते हैं वो DNS का स्किप कर सकते हैं। स्किप नहीं करता, DNS के पास जाता है, कहता है कि यार मेरे को नाम पहले से पता है तो फुल स्किप होता है। वेब होस्टिंग इज इंटरनेट है, उस पर कुछ कंपनीज ने अपने सर्वर्स रखे हुए हैं कि हम ये सर्वर्स हमेशा चलाते रहेंगे, सो दैट पीपल लाइक यू कुड होस्ट वेबसाइट्स। तो मैंने एक सर्वर चला दिया इंटरनेट पे जो हमेशा चलता रहता है, उस पर तुम्हें जाके होस्टिंग स्पेस खरीदनी पड़ती है कि सर ये लो 1500 रुपये, मेरे को 1 GB स्पेस दे दो सो दैट आई कैन होस्ट माई स्टफ, तो उसे वेब होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो 1 GB स्पेस मिल जाता है तुम्हें, कुछ पैसे देने पड़ते हैं एवरी ईयर, उस स्पेस पे तुम अपनी चीज़ें डालते हो, दैट विल बी एक्सेसिबल टू ऑल योर फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट। So that is web hosting. We'll cover it in the AMA session. We are just a bit too written for the lunch. I'm just covering up all the questions. Yeah. So HTTP और HTTP HTTP is the Hypertext Transfer Protocol. HTTPS is Hypertext Transfer Protocol secured. So secured में ये होता है कि जब request object बनती है तो वो सारी encrypt हो जाती है, browser encrypt कर देता है, मतलब protocol encrypt करता है, तो जो तुम्हारा transport layer है, network layer है, उस पर सारा encrypted data जाता है, so it cannot be hacked. तो जितने डेटा इंटेंसिव वेबसाइट्स होती हैं दैट आर सर्व्ड ऑन HTTPS, ताकि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो कोई मैन इन द मिडिल अटैक ना कर पाए और वो डेटा पढ़ ना पाए, राइट? विल कवर द डिटेल्स अगेन। एनी अदर क्वेश्चन? IP को हाइड किया जा सकता है। IP को हाइड नहीं किया जा सकता, उसको चेंज किया जा सकता है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जाती है तो एक रैपर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, IP वही रहती है। पता नहीं कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं पढ़ा होगा अभी मोस्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे तो नेटवर्क लेयर, तो उसमें एवरी डेटा पैकेट इट हैज़ सम डेटा इन इट, राइट? तो IP का भी एक पैकेट होता है, तो उसके ऊपर हम रैपर्स डालते जाते हैं सो एज टू मॉडिफाई द कंटेंट। जब वो नेक्स्ट टाइम पे पहुंचता है तो वो रैपर्स हटा के फिर अंदर से IP निकालते हैं। तो दैट इज हाउ प्रॉक्सीइंग एंड स्पूफिंग हैपेंस। क्वेश्चंस? Just run through what all web technologies can do for you. So user experience is whatever you see in the browser. User experience is कि when you are designing a website, you should know कि तुम्हारा जो end user है, how would he perceive your website. So every good site that you hear of, का पूरा एक UX team होती है that does testing, that does a lot of analysis कि ये जब browser में render होगा तो कितना usable होगा. So that falls under the category of user experience. बहुत प्रोमिनेंट करियर पाथ है, जिनको डिज़ाइनिंग पसंद है, जिनको यूज़र से इंटरैक्टिविटी पसंद है, या कौन सी चीज़ कैसे अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ बुरी लगती है, दिस इज़ द करियर यू शुड ऑप्ट फॉर। There's software engineering in web or any other field is so vast, cannot be covered at the moment. मेरे को तुम लोग अपने इंटरेस्ट बताना, we'll do it in the AMA that we'll have after the lunch. देन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वेबसाइट को रन करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है, सर्वर्स तो होते ही हैं, देन देयर आर लोड बैलेंसर्स। अब फेसबुक गेट्स 2 बिलियन रिक्वेस्ट अ डे, तो लोड बैलेंसिंग करते हैं, वो एक सिस्टम लगा हुआ है जो रिक्वेस्ट को पढ़ता है, फिर कहता है कि यार मेरे पास ये वाला सर्वर फ्री है तो मैं इसको दे देता हूँ, नेक्स्ट रिक्वेस्ट में ये वाला सर्वर फ्री है तो इसको दे देता हूँ, इट्स कॉल्ड लोड बैलेंसर। फिर कैशिंग इंजन्स होते हैं, जो सारा वेबसाइट होता है वो हमेशा सर्वर से उठ के नहीं आता, कहीं पे रास्ते में पड़ा होता है, कैशिंग इंजन में पड़ा होता है, तो वो कैश से उठ कर जाता है एज लॉन्ग एज इट हैज़ नॉट चेंज्ड। तो तुम अगर एक ही पेज को बार बार एक्सेस करते रहते हो तो वो कैश में डाल देते हैं। तो इंजीनियर्स आर सो स्मार्ट कि अगर फेसबुक के एनालिसिस की बात करें हम तो उनके डेटाबेस हिट्स 20% है, बाकी 80% डेटा वो अपने कैश इंजन से रेंडर करते हैं। तो दैट इज़ हाउ इफेक्टिव देयर इंजीनियरिंग इज, कि उनके सर्वर तक रिक्वेस्ट जाती ही नहीं है, समवेयर इन द मिडिल कैश फुलफिल कर देता है तुम्हारी रिक्वेस्ट। Then there are DevOps. DevOps is the link between software engineers and infrastructure. तो infrastructure को usable बनाना engineers के लिए is DevOps और developer operations. वो वाले tools जो तुम्हारी software engineers की interactivity infrastructure से कराएंगे, those are called DevOps. So these are the career paths that we take up in the questions that you might have. Then there's testing of websites. Testing हर software circle में होती है. Any software product that you build needs testing before going into production. So you can be testers as well. Then there's growth. Growth is that part of software engineering जहाँ पे तुम हर चीज़ को स्केल करने की कोशिश करते हो कि आज मेरा डेटाबेस 1 लाख लोगों को सर्व कर रहा है, व्हाट हैपेंस जब मेरी स्केलेबिलिटी 10 लाख हो जाएगी, जब I'll have 10 lakh users और 1 crore users. तो that is called growth engineering. बहुत
prominent techniques हैं growth engineering के कि तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, database की sharding करनी पड़ेगी, caching levels बढ़ाने पड़ेंगे. So there's lots of engineering involved that we can take up. If anybody is interested, please meet me after the talk anytime. I'm here. And there's network engineering. Network engineering is whatever happens between the request and the response. Beach का सारा part is network engineering. जब request object बन गई, how efficient it should be, कितना छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए. जितना बड़ा request object बनेगा, उतना time लगेगा जाने में, तो इसका response आने में भी उतना time लगेगा. So that covers network engineering, and that's kind of everything that web has. It has lots of stuff that cannot be covered here, but any interesting thing that you might have, you can always ask me. So are you brave enough to fly yet? It's kind of a metaphor कि इतना जानने के बाद are you brave enough to take up web development? So yeah, so I would have taken questions, but we are late for lunch. We'll take up lunch, we'll do the AMA session again. So we are ready for lunch, right? So yeah, thanks for your time. We'll take up AMA after lunch.